Good morning, everyone. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. Today we'll start the chapter number 12, reproduction in plants. But before that, let us pray for a while. Okay, come back. Let us first understand the meaning of the reproduction. Basically, reproduction can be defined as it is a biological process in which an organism gives rise to the young ones similar to itself. Young ones means offspring. It is a process, which process biological process in which any organism will give rise to similar to itself मतलब उसके जैसा ही similar रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स री एंड अ प्रोडक्शन री का मतलब अगेन एंड अगेन एंड प्रोडक्शन वी ऑल नो इट इज़ द प्रोसेस इन विच समथिंग इज प्रोड्यूस्ड ओके so reproduction it is a characteristic feature of all the living organism all the living organism does reproduction जैसे yeah dogs they will give birth to the puppies which are similar to the dogs only कुत्ते कभी cat के बच्चे को जन्म नहीं देंगे yes cat कभी dog को जन्म नहीं देगी means dog gives or dog reproduce its offspring which is a dog only similar to itself okay same way cow even monkey cat even birds also they lay eggs and from that eggs also birds are only produced this was in which organisms give rise to organisms only. Here, plants also reproduce. Plants can be reproduced with the help of seeds. How? See, here there is one mango tree in the first picture. In the second picture, some mango fruit is there, and in the third picture, mango seed is there. What will happen? Using these mango seeds, we can produce many other mango trees as shown below here. You will just keep these mango seeds into the soil, and if light, air and water properly these three things are available to the seeds, then they will germinate and it will grow into a mango tree. So this is also reproduction. Now see what will happen if the organisms do not produce. क्या होगा अगर living organisms जो हैं वो reproduce ही नहीं करेंगे. तो सबको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है कोई 60 साल जीता है कोई 5 साल सबका अलग अलग जो जैसा ऑर्गेनिज्म है उस हिसाब से है ना someone will live up to 70 years someone will live up to 50 years whatsoever after that death will occur yes so now if the organism is not reproducing अगर reproduction नहीं हो रहा है living organisms में तो उस particular लाइफ स्पैन के बाद डेथ हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की and as a result there will be no living organism on the planet earth what will happen कोई organism earth पे होगा ही नहीं फिर तो हमारा जो planet earth है अभी ऐसे माना जाता है कि सिर्फ वहीं पे लाइफ है तो वहाँ पे भी फिर कुछ नहीं बचेगा yes so reproduction helps the living organisms to continue their generation clear thus there is a cycle of birth growth and death yes बर्थ होता है फिर वो उनकी ग्रोथ होती है यस बर्थ होगा छोटा बेबी उसमें से वो ग्रो होगा बच्चा बनेगा उसमें से वो ग्रो होगा अडल्ट बनेगा फिर उनकी शादी होगी फिर उनके बच्चे होंगे है ना फिर वो बड़े होंगे फिर उनकी शादी होगी उनके बच्चे होंगे तो दिस वे द रिप्रोडक्शन साइकिल कंटिन्यूज some MCQs based on the whatever we have learned up till now the process by which individuals produce young ones of their own kind is called as what it is called ट्रांसपीरेशन रेस्पिरेशन डाइजेशन के रिप्रोडक्शन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लाइफ को कंटिन्यू रहे अर्थ पे क्या है वो रिप्रोडक्शन है करेक्ट तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा रिप्रोडक्शन व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस ऑल्सो रिप्रोडक्शन बेसिकली दोनों का मतलब सेम ही है क्वेश्चन का मतलब सेम ही है देखो द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल उसके जैसा ही सिमिलर काइंड का ही यंग वन प्रोड्यूस करता है तो रिप्रोडक्शन और उसी की वजह से अर्थ पे जो लाइफ है वो कंटिन्यूटी में रहती है सो दैट आंसर इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हर किसी में होता है जैसे हमने पहले देखा पर इस चैप्टर में हम सिर्फ लर्न करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ओके
अभी तक जो भी एक्सप्लेनेशन था वो रिप्रोडक्शन क्या है उसके बारे में था. नाउ आवर चैप्टर्स टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम लर्न करेंगे. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होना मतलब एक प्लांट्स में से बहुत सारे प्लांट्स होना, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स होता है. यस, देखो यहाँ पे एक रोज प्लांट है, उसमें से बहुत सारे रोज प्लांट ग्रो हो रहे हैं. वो कैसे होते हैं, ये रिप्रोडक्शन ही हुआ. पर कैसे होगा उसके बारे में लर्न करना है. पर उससे पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन 6th स्टैंडर्ड, parts of plant. Yes, what are different parts of plant? We all know, as it is mentioned here also. See, flower, stem, leaves, roots. Yes, that is root system and shoot system. So these are all parts of plants. उसमें से वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम. दिस आर द वेजिटेटिव पार्ट्स. और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फ्लावर. सो प्लांट में रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू हो सकता है, फ्लावर के थ्रू. फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट बोलते हैं. वेजिटेटिव पार्ट में से भी हो सकता है और वो है रूट्स, लीव्स और स्टेम. क्लियर. अभी इतने तो हमें पता ही थे, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं. नोड, इंटरनोड और बड, ये तीन क्या होते हैं वो भी हमें समझना है. सी, नोड क्या है, नोड इज अ पॉइंट ऑन द प्लांट स्टेम वेयर द फ्लावर्स, ब्रांचेस एंड लीव्स फर्स्ट स्टार्ट टू ग्रो. आप देख सकते हो यहाँ लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है उधर नोड मार्किंग किया है. जहाँ से भी स्टेम में कहीं से दूसरी देखो ब्रांच ऐसे निकल रही है ना, जहाँ से कोई भी स्टेम, फ्लावर या तो ब्रांच या तो लीव्स पहले ग्रो करना स्टार्ट करेंगी उसको बोलते हैं नोड. यस, और दो नोड के बीच में जो स्टेम का रीजन होता है ना उसको बोलते हैं इंटरनोड. क्लियर. और बड क्या होता है, बड इज अ स्मॉल पॉइंटेड लंप दैट अपीयर्स ऑन अ प्लांट एंड डेवलप्स इनटू अ लीफ और अ फ्लावर और अ शूट. तो एक छोटा सा बड होता है, देखो मार्क किया गया है. सी हियर ऑल थिंग, बड जो है वो लेफ्ट साइड में ऐसे रेड कलर के मार्कर से राउंड राउंड करके दिखाया है. छोटे छोटे देखो हैं एकदम बड, जिसको हम कली बोलते हैं. वो पहले प्लांट पे अपीयर करेगा, फिर धीरे धीरे उसमें से लीफ या तो फ्लावर या तो शूट जो है वो प्रोड्यूस होगा, बड़ा होता जाएगा उसमें से. ठीक है. तो नोड, इंटरनोड एंड बड, आई थिंक दिस थ्री आर क्लियर टू यू. नोड क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्लांट stem where the flowers, branches and leaves first start to grow. What is internode? It is the part of the stem between the two internodes, between the two nodes. What is a bud? It is a small pointed lump that appears on a plant and develops into a leaf or a flower or a shoot. See, something like this. ऐसे पहले दिखता है, ये सारे buds हैं, फिर धीरे धीरे इसमें से ग्रो होगा. क्या ग्रो होगा, या तो लीफ या तो फ्लावर या तो शूट. देखो ये वेजिटेटिव बर्ड्स है ना. देखो बर्ड से पहले पिक्चर में छोटा सा बर्ड दिखा है, फिर दूसरे पिक्चर में धीरे धीरे वो खुल रहा है, बड़ा हो रहा है. एंड इन द थर्ड पिक्चर फाइनली यू कैन सी द लीव्स हैव कम आउट. ओके, सो दीज आर द वेजिटेटिव बर्ड्स. रिप्रोडक्टिव बर्ड और अ फ्लावर बर्ड. फ्लावर का बर्ड ऐसे होता है, देखो पूरी कली जो होती है, ये तो सबने देखा होगा, ये धीरे धीरे खुलेगा. तो दो अलग टाइप के बर्ड्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे लीव्स और वो बाहर आ रहे हैं शूट्स, और यहाँ पे फ्लावर्स. क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लावर बर्ड और अ रिप्रोडक्टिव बर्ड. सो सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव लर्न. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, प्लांट का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. बड विच गिव्स राइज टू न्यू लीव्स एंड अ शूट इज कॉल्ड एज डैश. कौन सी बड जो है वो न्यू लीव्स या तो शूट को राइज देती है, रिप्रोडक्टिव बड के वेजिटेटिव बड. कौन सी, वेजिटेटिव बड गिव्स राइज टू द न्यू लीव्स एंड शूट. ओके. अभी जो मोड्स हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं, वो इस चैप्टर में बेसिकली दो टाइप के हैं. हमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लर्न करना है ना, तो इससे पहले हमने प्लांट पार्ट रिवाइज करना था, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो वो हमने रिवाइज कर लिया. अभी हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लर्न करेंगे. तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है, इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. So there are several ways by which plants produce their offspring. These are categorized into two types, that is asexual reproduction and a sexual reproduction. What is difference between both of them?
In asexual reproduction, new plants are obtained from existing plants without the production of seeds. बिना सीड की हेल्प से ही न्यू प्लांट ऑब्टेन हो जाता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट ओनली. सो दिस रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स. सीड की हेल्प से दूसरा प्लांट, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है. So this is the main difference between asexual reproduction and a sexual reproduction. Okay? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो सीड से कैसे होता है. फर्स्ट पिक्चर देखो, टोमेटो की स्लाइस ली गई है, उसके अंदर उसके बहुत सारे सीड्स हैं. इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी जो टोमेटो के सीड्स हैं ना वो सॉइल के अंदर डाल रहे हैं. इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी सीड हैज़ जर्मिनेटेड एंड अ प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम इट. इन द फोर्थ वन यू कैन सी एरो के हिसाब से जाना. हाँ, राइट साइड में नीचे वाला आप देखो फ्लावर आ रहे हैं फिर उसमें, है ना. अभी फ्लावर में से नेक्स्ट पिक्चर देखो क्या हुआ, टोमेटो का फ्रूट ग्रो हुआ. और फिर लास्ट पिक्चर देखो टोमेटो के फ्रूट बड़ा होके पूरा रेड हो गया. वापस उसमें से आप टोमेटो की स्लाइस लेके वापस सीड्स जो हैं वो सॉइल में डालो. सो दिस वे द साइकिल विल कंटिन्यू एंड अ न्यू प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स. सो दिस रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? So the process of propagation of plants by seeds is called as dash. It is called as sexual propagation. Propagation means reproduction only. Okay. Now, process of propagation of plants without seeds is called as asexual propagation. Okay. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में लर्न करते हैं अभी कैसे होता है. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट्स विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. वी ऑलरेडी नो दिस, मैंने अभी ये बताया. दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू आई गेस. कैसे होगा ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है ना. रोज का प्लांट है, रोज के प्लांट मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स हो रहा है, बहुत सारे रोज के प्लांट्स मिल रहे हैं. कैसे? देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना 4 मेथड्स होती हैं. हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? 4 मेथड्स आर देयर. फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकेंड इज बडिंग, third is fragmentation, and the fourth one is spore formation. So in asexual reproduction these are 4 different types of reproductive methods. Okay, so सबसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो हमें पता है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं. तो रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स. तो इन चारों से कैसे रिप्रोडक्शन होगा, तो सबसे पहले हम लर्न करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में. ओके चलो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स यूज होंगे प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए. अभी कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, तो वो है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स. तो इन चारों को टर्न बाय टर्न लर्न करेंगे. सबसे पहले देखो, न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट. जो भी नया प्लांट ग्रो होता है ना वो एकदम आइडेंटिकल मतलब सेम होता है पेरेंट प्लांट जैसा. पेरेंट प्लांट जैसा मतलब जिस प्लांट की हेल्प से हमने दूसरा प्लांट प्रोड्यूस किया. अभी वो जो पेरेंट प्लांट है जिस प्लांट को हम यूज़ कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, उसका या तो हम स्टेम यूज़ करेंगे, या तो लीव्स यूज़ करेंगे, या तो रूट्स, या तो बड्स. कोई भी चीज़ हम इनमें से यूज़ कर सकते हैं, है ना. सबसे पहले हम स्टेम यूज़ कर रहे हैं. तो देखो रोज़ का प्लांट है, उसकी हमने स्टेम कटिंग की. स्टेम कटिंग करनी है ना तो आप उसमें देखो उसमें ना बड्स हों, एटलीस्ट कोई तो बड हो उसमें लीफ का, है ना. तो फिर वो स्टेम कटिंग आप सॉइल में डाल दो, पॉट के अंदर सॉइल में डाल दो. तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि नया रोज़ का प्लांट ग्रो चुका है. तो इस तरीके से हम स्टेम की हेल्प से आइडेंटिकल प्लांट, पेरेंट प्लांट के आइडेंटिकल हमने एक नया प्लांट ग्रो किया. किसकी हेल्प से? स्टेम के हेल्प से. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग. पर ये आप कोई भी मंथ में ऐसा प्रोसेस करो तो ये ग्रो हो जाएगा ऐसा नहीं है. रोज़ का प्लांट बेसिकली अक्टूबर मंथ में ग्रो होता है. ओके तो अगर आपको ऐसे ट्राई करना है सो डू इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ओके स्टेम कटिंग सिर्फ रोज़ में नहीं होती, वो ग्रेप्स में भी हो सकता है, वो शुगर केन में भी हो सकता है. ओके
अभी स्टेम कटिंग जो होगा ना, वो एक आप जो लोग हैं जिसमें से भी आप स्टेम कट करके ले रहे हो ना, जैसे मैंने पहले बोला उस स्टेम में बड्स होना ज़रूरी है, और वो प्लांट पूरा हेल्दी होना चाहिए। खराब प्लांट या तो जो जिसकी हेल्थ बराबर नहीं है, आप उस प्लांट में से स्टेम कटिंग मत लेना, है ना। फिर जो आपने कट किया ना, वो आपको सॉइल में ग्रो करना है और उसको पानी रेगुलरली देना है, एंड देन द कटिंग गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। क्लियर? देखो है स्टेम कटिंग, उसके अंदर बड्स को सॉइल में डाला, रेगुलरली वाटर करो, प्रॉपर सनलाइट में रखो, और इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। क्लियर? स्टेम का हो गया। अभी ये स्टेम ऐसी थी जो हमें बाहर दिखती हैं, है ना। अभी कोई कोई स्टेम्स ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं। क्यों? क्योंकि कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम है और वो मॉडिफाइड होती है, जो प्लांट्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आती है। प्लांट्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए मतलब मेनी अदर प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम दैट। सो सम प्लांट्स हैव मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम विच आर यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे ऐसी स्टेम थी तो हम सब स्टेम मतलब ऐसी सीधी एक लकड़ी ही समझते हैं, है ना। पर अगर ये स्टेम मॉडिफाइड है, जैसे कि पहला पोटैटो, पोटैटो कैसा होता है हम सब ने देखा है, वो एक स्टेम ही है पर वो अंडरग्राउंड स्टेम है जो मॉडिफाई हो चुकी है, तो वो पोटैटो का शेप ले लेती है। पोटैटो इज अ स्टेम। ओके, पोटैटो और स्वीट पोटैटो अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को मिक्स मत कर देना। एंड पोटैटो इज अ स्टेम विच इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम, और उसकी स्टेम को क्या बोलते हैं? ट्यूबर्स। क्या बोलते हैं? ट्यूबर्स। इन द सेम वे ऑनियन एंड गार्लिक, ये दोनों भी अंडरग्राउंड स्टेम हैं, मॉडिफाइड हैं, इसीलिए उनका शेप ऐसा है, और इनको बोलते हैं बल्ब्स। एंड देन जिंजर एंड टर्मरिक, उसको बोलते हैं राइजोम। क्लियर? देखो सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो प्लांट जो है उसकी स्टेम अंडरग्राउंड है, मॉडिफाइड हो चुकी है, इसलिए उनका ऐसा शेप हो चुका है। सबका शेप यहाँ पे दिख रहा है आपको सारे पिक्चर्स में। ऑनियन प्लांट ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम, turmeric plant is also an underground stem. Clear? It is just that their stems are modified. So potato की modified stem को क्या बोलते हैं? Tuber. So potato tuber is modified underground stem. Potato tuber has number of buds. उसके ऊपर आपने ऐसा देखो वाइट स्ट्रक्चर देखा होगा, पहले पिक्चर में दिख रहा है, नीचे वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है पोटैटो के ऊपर, उसको बोलते हैं बड। पोटैटो की बड है वो, और उसको आइज भी बोलते हैं, जिसमें से नया प्लांट ग्रो हो सकता है। ओके, अभी अगर हम कोई भी पोटैटो है उसके छोटे टुकड़े कर दें, फ्यू पीसेस ऑफ पोटैटो यू आर गोइंग टू टेक, कौन सा पीस? जिसके अंदर आई हो, है ना। तो वो आई वाला पार्ट जो है, मतलब पोटैटो के बड वाला जो पार्ट है, उसको आप जैसे सेकेंड पिक्चर में दिखा रहे हैं ऐसे आप सॉइल के अंदर ग्रो कर दोगे और उसको वाटर दोगे रेगुलरली, तो वो इस तरीके से जर्मिनेट होके ऐसा प्लांट बनेगा। ठीक है, फिर वापस उसमें से हमें पोटैटो मिल जाएगा विच विल बी एन अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, ये याद रखना, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको ट्यूबर बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, लीव्स। स्टेम का हमने कर लिया, करेक्ट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 4 टाइप से हो रहा था ना, उसमें से एक हमने स्टेम था वो हमने लर्न कर लिया। दूसरा वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट लीव्स। लीव्स में से कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो some plants have leaves that contain buds that can develop into a new plant. अब देखो यहाँ पे buds हैं leaves के ऊपर, है ना। ये buds धीरे धीरे क्या करेंगी? give rise to a new plant. एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफाइलम। In this leaf of the plant falls on the moist soil. अगर ये प्लांट की लीफ जो है वो किसी मॉइस्ट सॉइल पे नीचे गिर गई, तो इसके जो बड्स हैं ना, इसकी लीफ में से, इसमें से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में हर एक उसके लीफ के ऐसे कोने में बड्स हैं ना। ठीक है, थर्ड टाइप लर्न करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की थर्ड टाइप, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप्स हैं, उसमें पहला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी 4 टाइप, उसमें 2 हमने लर्न कर लिए, स्टेम एंड लीव्स। थर्ड वी आर गोइंग टू लर्न इट इज रूट्स। ओके, नाउ सी सम प्लांट्स हैव मॉडिफाइड थिकन रूट्स विथ बड्स। रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड डहलिया आर सोन इन सॉइल। देखो स्वीट पोटैटो आया, स्वीट पोटैटो इज अ रूट बट पोटैटो इज अ स्टेम।
दोनों मॉडिफाइड हैं। ये कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स है ना मॉडिफाइड हो जाते हैं और वो ऐसे थिक बड के जैसे हो जाते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो है, डहलिया है, वो देखो नीचे दिख रहा है ना आपको रूट्स में, वो पूरा ऐसे मॉडिफाई होके पूरा थिक हो जाता है। हमारे जैसे बेसिक रूट्स होते हैं वैसा नहीं होता है। एंड दिस बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रूट्स ग्रो एंड गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट्स। तो इसी में से ही ये बर्ड्स जो है वो ग्रो होंगे एंड देन द न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम देम। ओके, जैसे कैक्टस है, अभी प्लांट्स सच एज कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विद देयर पार्ट्स get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plant. अभी कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसका अगर कोई भी पार्ट टूट के डिटैच हो गया, अलग हो गया, डिटैच होना मतलब अलग हो गया मेन प्लांट बॉडी में से एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, देन फ्रॉम दैट फॉलन पार्ट न्यू प्लांट विल ग्रो। ओके, What are the advantages of vegetative propagation in plants? Vegetative propagation जो है plants में उसके advantages कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि वो seeds produce नहीं करते, है ना? So the plants that do not produce seeds can be multiplied by this method. तो plants seed produce नहीं करते, फिर भी वो multiply हो सकते हैं, है ना? कौन सी मेथड से? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड से। बाकी जो प्लांट्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दे विल टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स। सीड्स में से हमने जो भी प्लांट ग्रो किया और बिना सीड के जो प्लांट हमने ग्रो किया, तो कौन जल्दी फटाफट ग्रो हो जाएगा कम टाइम में? वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला, जिसमें सीड की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, Now the new plants are exact copies of the parent plant as they are produced from a single parent. अभी जो नया प्लांट ग्रो हुआ ना वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट प्लांट की। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट प्लांट में से ग्रो हुआ है। ठीक है, MCQs, production of new individuals from the vegetative part of a parent is called, इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट में से न्यू इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन हुआ वापस, तो ये कौन सी मेथड है? इट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रोजेस आर प्रोपगेटेड बाय डैश एंड ऑनियंस आर प्रोपगेटेड बाय डैश। रोजेस किस में से ग्रो होते हैं और ऑनियंस किस में से? सीड्स राइजोम, स्टेम कटिंग बल्ब्स, बल्ब्स स्टेम कटिंग, रूट्स और लीव्स। कौन सा ऑप्शन आएगा? करेक्ट, रोजेस किस में से ग्रो होते हैं? स्टेम कटिंग में से। एंड ऑनियंस वो एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसको बोला जाता है बल्ब्स। देखो थर्ड ऑप्शन भी है बल्ब्स और स्टेम कटिंग, पर उसमें स्टेम कटिंग पीछे है, मतलब वो ऑनियन का हो गया, क्योंकि इसमें ऑनियन क्वेश्चन में ऑनियन सेकेंड ऑप्शन है इसीलिए। तो जिस तरीके से लाइन में हो आंसर भी उसी लाइन में देना है हमें, है ना? Which of the following plant reproduce by its leaves? इसमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो लीव्स में से रिप्रोड्यूस करता है? डहलिया, ब्रायोफाइलम, जिंजर, पोटैटो। कौन सा आएगा? करेक्ट, ब्रायोफाइलम। ऐसा पिक्चर हमने डिस्कस किया था ना, उसमें बर्ड्स होते हैं लीव्स में। यस, मैच द फॉलोइंग। On the left side we have potato, sweet potato, garlic and grapes. On the right side we have roots, bulb, tuber and a stem cutting. तो सबसे पहला पोटैटो का देखते हैं। पोटैटो इज अ ट्यूबर, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, जिसको क्या बोला जाता था? ट्यूबर। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट। गार्लिक, गार्लिक इज अ बल्ब, मॉडिफाइड स्टेम। एंड लास्ट जो बचा ग्रेप्स, ग्रेप्स किस में से होता है? स्टेम कटिंग। क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। तो हमारा पहला टाइप हमने लर्न कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लर्न करने वाले हैं दैट इज बडिंग। बडिंग यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है ईस्ट का, जो कि एक सिंगल सेल फंजाई है। ठीक है, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अ बड ग्रोज आउट फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट सेल। अब ऊपर जो 12.5 डायग्राम दिया है रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग,
उसको साथ साथ में ऑब्जर्व करते जाना। देखो सबसे पहले क्या है, एक बड दिया है, ईस्ट सेल है जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अभी ये बड जो है ना वो ग्रेजुअली ग्रो होता जाएगा, धीरे 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 बड़ा होता जाएगा और फिर गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। क्या होगा देखो, सेकेंड देखो 12.5 में एरो के बाद जो सेकेंड दिया है डेवलपिंग बड दिया है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। बड़ा होने के बाद थर्ड वाला देखो उसमें न्यू बड फॉर्म हो गया, पेरेंट प्लांट से वो डिटैच हो गया, है ना। तो इस तरीके से एक नया ईस्ट का सेल बन गया। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। फिर ये नया सेल जो है वो धीरे धीरे वो बड़ा होगा, मैच्योर होगा और फिर वो दूसरे ईस्ट सेल प्रोड्यूस करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। लास्ट वाला देखो डायग्राम जो है उसमें लास्ट वाला देखो चेन ऑफ बर्ड्स है ना। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसे चेन ऑफ बर्ड्स भी हो जाता है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है तो बहुत कम समय में, इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये बडिंग समझ में आ गया सबको। बड के फॉर्म में ग्रो होते हैं वो और फिर पेरेंट सेल से डिटैच हो जाते हैं। क्लियर? तो दूसरा बडिंग भी हमने लर्न कर लिया है। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज डन इन आल्गे। आल्गे आप सबने देखा होगा, जहाँ पे भी पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे ऐसे ग्रीन ग्रीन पैचेस हो जाते हैं, है ना। वो क्या होता है, बेसिकली वो आल्गे होता है। तो वो एक स्लाइमी ग्रीन पैच है पोंड में या तो कहीं पे भी जहाँ एक स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है, मतलब पानी वहाँ पे रहता है जमा, फ्लो नहीं करता रहता। तो इस जगह पे ऐसे ग्रीन पैचेस होते हैं जो बहुत ऐसे स्टिकी होते हैं, है ना, स्लिपरी होते हैं। तो जब कभी भी ये आल्गे मैच्योर होगा तो वो दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएगा। फ्रेगमेंट यानी पार्ट ओनली, ओके। फिर ये जो फ्रेगमेंट है या तो कोई भी पीस है वो वापस ग्रो होगा एक नए इंडिविजुअल में। फिर वापस वो जब ग्रो हो जाएगा, वापस मैच्योर हो जाएगा, वो वापस 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। So when water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation and cover a large area in a short period of time. तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट और पानी मिलता है ना जब, तब ये आल्गे फटाफट ग्रो होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत स्पीड में, रैपिडली। कौन सी प्रोसेस से? फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से। आप देखो यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, नीचे वाला 12.6 डायग्राम देखो, ऊपर एक पार्ट दिया है, वो क्या है, पूरा एक है। अभी वो मैच्योर हो गया, फिर वो दो फ्रेगमेंट्स में मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नीचे देखो, है ना। फिर वो मैच्योर होगा, बड़ा होगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा और मैच्योर होगा, अगेन इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, है ना। सो फ्रेगमेंट मतलब कि एक पार्ट, मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म से कोई भी एक पार्ट सेपरेट होगा और फिर वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होगा। सो फ्रेगमेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स। स्प्लिट होना मतलब डिवाइड होना। ईच ऑफ दिस फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 methods, of that 3 we have already learned. Last one, that is spore formation. स्पोर फॉर्मेशन किस किस में होता है? तो मॉसस, फर्न्स, फंजाई एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय दिस मीन्स ऑफ स्पोर्स। ओके, स्पोर क्या है? इज अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। स्पोर्स आर नॉट सीड्स। स्पोर जो है ना, पहले तो वो है ना बहुत ही छोटा है, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और वो सीड नहीं होता है, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, व्हेन स्पोरेंजियम बर्स्ट स्पोर्स आर रिलीज्ड इन द एयर एंड एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देखो यहाँ पे बाजू के डायग्राम में देखो दिया है, स्पोरेंजियम दिया है, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं। कभी कभी क्या होगा, ये है ना एकदम बर्स्ट हो जाएगा, मतलब फटेगा, है ना। फिर क्या होगा, उसमें से स्पोर्स बाहर निकलेंगे और वो एकदम लाइट इन वेट होते हैं, इसीलिए वो हवा में कहीं ना कहीं दूर जाएंगे और बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं।
अभी ये स्पोर्स है ना, वो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर होते हैं, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी आराम से विथस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, अगर ऐसा है फिर भी वो लोग विथस्टैंड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, दे कैन सर्वाइव अंडर फेवरेबल कंडीशन. जब भी कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा तो ये स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा और उसमें से एक नया इंडिविजुअल ग्रो करेगा, है ना. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, देखो फंजाई उसमें है स्पोर्स, मोसस स्पोर्स में, फर्न्स स्पोर्स में. कैसे होता है, देखो ये स्पोरेंजियम जैसे मैंने पहले बताया था, उसके अंदर स्पोर्स हैं, बर्स्ट होंगे, सीड्स नहीं होते पर बहुत छोटे छोटे सीड के तरीके से ही होते हैं. फर्न, फर्न के जो लीव्स होते हैं उनके पीछे की तरफ देखो, यहाँ पे दूसरे पिक्चर में दिखा रहे हैं ऐसे डॉट 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 डॉट्स है ना, वो भी स्पोर्स हैं. ये स्पोर्स जब भी नीचे जाएंगे सॉइल में, अगेन उसमें से एक नया प्लांट ग्रो होगा. ठीक है. सो इन ईस्ट रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से, स्पोर फॉर्मेशन से, बडिंग से, के बाइनरी फिशन से, बडिंग से, करेक्ट. तो ये बडिंग हमने पहले भी सीखा कैसे हो रहा था, इस तरीके से हो रहा था ना. तो ये बडिंग ईस्ट का एग्जाम्पल जो है वापस आपको याद आए, इसीलिए सिर्फ ये पिक्चर दिखाया. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. इसमें से कौन है जो स्पोर्स फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस नहीं करता, फंजाई, आल्गे, मॉसस के फर्न. कौन नहीं करता है ऐसे पूछा है, कौन नहीं करेगा, तो आल्गे. हाँ, फंजाई, मॉसस एंड फर्न, ये तीनों तो किससे करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं. आल्गे किससे करता है, फ्रेगमेंटेशन से, देखो है. ओके. और स्पोर फॉर्मेशन के लिए ये देखो फंजाई, मॉसस एंड फर्न्स. Clear? So that's it. In the next session, we will learn about the sexual reproduction. Stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.